Good morning, students. I hope you all are fine. So, today I am going to teach you the first chapter of class 7th English course book. And the first chapter that you have to read in class 7th English course book is The Pigtail. Now, I will tell you everything about this chapter. You just have to keep patient and listen to me, okay? Just listen to me very carefully and I am going to teach you all of this. Now first we will start by understanding the meaning of this title, the pigtail. What is the meaning of the word pigtail? A pigtail is a long tail-like structure made out of hair, okay? In this chapter you can see that there is a picture given of a person who has a long ponytail behind his head. You can see this? Yes. Now this ponytail, which is called as pigtail, is what this poem is all about. Okay? We are going to understand this poem by reading each line given in this poem. Okay, now you have to know the name of the writer of this chapter. The name of the poet is William Makepeace Thackeray. First of all, remember this name. You will have to answer this question if it is asked in your exams, and therefore you should remember the name of the poet. You should always remember the name of the poets of the poems that you study. Okay, so William Makepeace Thackeray is the writer of this poem. Okay, he is the poet. He is a British poet. He is from Britain, and he was born in India. This is something special about him, that he was born in India. Okay, so this is enough. This is how much you should know. You should just remember the name of him, name of this person, and that is more than enough for you. Okay, हाँ, तो अब I will make you understand this in Hindi as well कि हमारे चैप्टर का नाम पिगटेल है. पिगटेल का मतलब टेल जैसा स्ट्रक्चर जो बालों से बनाया जाता है, जिसको हम आम भाषा में चोटी कहते हैं. ठीक है, आप अगर समझ पा रहे हैं तो. और आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि इस इंसान के पीछे एक लंबी सी चोटी है, और यही हमारे चैप्टर का टाइटल है. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस. जस्ट हैव टू लिसन टू मी क्वाइटली. Of course you have to be quiet. I'm not able to hear your voice, so even if you talk, it's okay, but listen to me, okay, and just understand everything. Now I'm going to start with the first sentence. There lived a sage in days of yore. There lived a sage. What is the meaning of the word sage? Sage का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हो, बहुत ही ज़्यादा उसको नॉलेज हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, लर्नड इंसान, जिसको किसी नॉलेज का कोई भी कमी ना हो. तो अभी जो आपको एक सेज बोला जा रहा है पहले इस सेंटेंस में, इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे इस पोएम का जो हीरो है, जो मेन कैरेक्टर है, वो है एक सेज, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा बुद्धि हो. ठीक है, देयर लिव्ड अ सेज, तो वो सेज रहा करता था इन डेज ऑफ योर. डेज ऑफ योर मतलब पुराने दिन, जो बीते हुए दिन है, बहुत समय पहले. कौन रहा करता था? एक सेज रहा करता था, एक बुद्धिमान व्यक्ति रहा करता था. ये पोम की शुरुआत उसी तरह है जैसे कहानियों की शुरुआत होती है ना, कि बहुत समय पहले, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, एक राजा रहा करता था. बस उसी तरह से शुरुआत है हमारे इस पोएम का भी. और इसका जो मेन कैरेक्टर है हमारा सेज, उसको ऐसे ही लिखा गया है कि बहुत समय पहले एक सेज रहा करता था. ठीक है, एंड ही हैंडसम पिगटेल वोर, और उसके पास क्या था? एक हैंडसम पिगटेल. हैंडसम का मतलब क्या? बहुत ही अच्छा दिखने वाला
पिगटेल मीन्स बहुत ही अच्छी चोटी थी उसकी, अ लॉन्ग टेल ऑफ हेयर दैट ही हैज़ behind his head. You can see it in the picture also that he has a long tail of hair. But wondered much and sorrow more. This person, the sage, wondered much. Wonder का मतलब क्या होता है? ये wonder शब्द का past tense है wondered. Wonder का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, विचार करने के नज़रिए से किसी चीज़ के बारे में सोचना. बट वंडर्ड मच, काफ़ी सोच रहा था. एंड सॉरोड मोर, और बहुत ज़्यादा सोचने से ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा क्या था? दुख था. किस बात का दुख था? बिकॉज इट हंग बिहाइंड हिम, क्योंकि वो चोटी कहाँ थी? उसके पीछे थी. इस बात का उसको बहुत ही दुख था. बट वंडर्ड मच एंड सॉरोड मोर बिकॉज इट हंग बिहाइंड हिम, क्योंकि वो चोटी उसके पीछे थी, उसकी जो पिगटेल थी वो उसके पीछे थी, इसलिए उसको बहुत दुख था. आप इतना तो फर्स्ट पैराग्राफ से समझ गए होंगे कि ये जो हमारा सेज है ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत इसको नॉलेज है, बट इसको एक छोटा सा बात इतना परेशान कर रहा है कि उसका पिगटेल पीछे क्यों है. ठीक है, अब आप आगे देखेंगे आगे क्या होता है. He mused upon this curious case. What does he do? He mused upon this curious case. Muse का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत ही गंभीरता से सोचना. ठीक है, तो ये जो हमारे सेज हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये बहुत गंभीरता से सोच रहे हैं इस क्यूरियस केस को, इस प्रॉब्लम को, कि अरे ये इतना ज़्यादा सोचने लगे इस बारे में कि इनके ये चोटी पीछे क्यों है, आगे क्यों नहीं है. और फिर उन्होंने क्या किया सोच के? एंड स्वोर है स्वेयर का पास्ट टेंस. ठीक है, स्वोर का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में प्रतिज्ञा ले लेना, कसम खा लेना एकदम कि हम ऐसा ही करेंगे. तो वो क्या स्वोर कर लेते हैं? एंड स्वोर ही वुड चेंज द पिगटेल्स प्लेस. क्या स्वोर कर लेते हैं? कि ही विल चेंज द पिगटेल्स प्लेस. जो पिगटेल का जो जगह है, मीन्स जो उनकी जो चोटी है उसका जगह वो बदल देंगे, ऐसा वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं. एंड हैव इट हैंगिंग एट हिज फेस, और उसकी जगह बदल कर क्या करेंगे? उसको कहाँ रखेंगे? अपने फेस पे रख लेंगे अपनी पिगटेल को. समझ रहे हैं आप? नॉट डैंगलिंग देयर बिहाइंड हिम. डैंगलिंग का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जब झूलते रहता है ना तो उसको हम लोग डैंगलिंग करते हैं. तो उसकी चोटी क्या है? अभी झूल रही है. तो वो क्या कहना चाह रहा है सेज, मतलब क्या सोच रहे हैं वो, कि इस पिगटेल को वो पीछे झूलने नहीं देंगे. क्या करेंगे? इस पिगटेल को आगे लाके अपने सर पे लगा लेंगे, अपने फेस पे लगा लेंगे आगे की तरफ. समझ रहे हैं? सेज ही, एंड व्हाट डज ही से? वो कहते हैं द मिस्ट्री आई हैव फाउंड आई विल टर्न मी राउंड. क्या कहते हैं? कि इस रहस्यमय सिचुएशन का मुझे, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन का मुझे उत्तर मिल गया है. कि इसका क्या उत्तर है, इसका क्या समाधान है? कि आई विल टर्न मी राउंड, मैं अपने आप को गोल घुमा लूँगा और मेरा सर आगे से, मतलब मेरा चेहरा आगे से पीछे चला जाएगा और मेरी चोटी पीछे से आगे आ जाएगी. ऐसा सॉल्यूशन वो निकालते हैं. ही टर्न हिम राउंड, और वो क्या करता है? खुद को गोल घुमाते हैं. बट स्टिल इट हंग बिहाइंड हिम. अब आप बताइए, कोई अगर गोल घूम जाएगा तो क्या उसकी चोटी पीछे से आगे आ जाएगी? ऐसा होता है? बट स्टिल इट हंग बिहाइंड हिम, तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ? उसकी चोटी अभी भी पीछे थी. वो जब गोल घूम भी गया तो उसका चेहरा आगे आ गया और चोटी अभी भी पीछे थी. देन राउंड एंड आउट एंड इन. अब क्या कर रहे हैं हमारे बुद्धिमान व्यक्ति? वो बार बार गोल गोल घूम रहे हैं ये सोचकर कि कभी तो चोटी आगे आ जाएगी. एंड राउंड एंड आउट एंड इन. ऑल डे द पजल्ड सेज डिड स्पिन. ऑल डे मीन्स पूरे दिन. द पजल्ड सेज, पजल्ड मतलब कन्फ्यूज़न में, अरे अब क्या करें, ये आगे क्यों नहीं आ रही है, ऐसा सोच कर वो पूरे दिन क्या करते रहे? स्पिन करते रहे. स्पिन करते रहे मतलब रोटेट करते रहे, आगे से पीछे, पीछे से आगे, ऐसे. समझ रहे हैं आप? इन वेन होता है जब हम कोई चीज़ बहुत ही मेहनत से करते हैं और वो चीज़ बर्बाद हो जाए, उसको कहते हैं बेकार हो जाना. उसी का
उसका इन वेन का मतलब क्या है, वही है। इन वेन इन मैटर्ड नॉट अ पिन, थोड़ा भी फर्क, नॉट इवन लाइक अ पिन, थोड़ा भी फर्क उनके गोल गोल घूमने से नहीं पड़ा। और द पिगटेल हंग बिहाइंड हिम, और अभी भी पिगटेल कहाँ है, उनके पीछे ही है। अब वो आगे क्या करते हैं, एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राउंड अबाउट, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, अब हम 5th पैराग्राफ में आ गए हैं। एंड राइट एंड लेफ्ट एंड राउंड अबाउट, वो अभी भी कभी राइट कभी लेफ्ट कभी राउंड घूम रहे हैं। एंड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, एंड इन एंड आउट, कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ, कैसे भी घूम घूम कर देख रहे हैं। ही टर्न्ड बट स्टिल द पिगटेल स्टाउट, और वो कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ कभी ऊपर कभी नीचे घूम रहे हैं। और पिगटेल क्या है, अभी भी वहीं पे मजबूती से टिका हुआ है। कहाँ टिका हुआ है, उनके सर के पीछे। पिगटेल का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। बट स्टिल द पिगटेल स्टाउट हंग स्टेडीली बिहाइंड हिम, उनके पीछे अभी भी क्या है, बहुत ही स्टेडीली, स्टेडली मीन्स बहुत ही व्यवस्थित रूप से, बिना हिले डुले, अपना एकदम अच्छे से, जैसे पिगटेल रहता है वैसे ही है। पिगटेल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एंड दो हिज एफर्ट्स नेवर स्लैक, स्लैक का मतलब होता है कि स्लो हो जाना, मीन्स रुक जाना कोई चीज़। तो बोल रहा है उनके जो एफर्ट्स थे, एफर्ट्स का मतलब है प्रयास, बहुत सारे प्रयास जो वो कर रहे हैं। एंड दो का मतलब है जबकि वो बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं। हिज एफर्ट्स नेवर स्लैक, उनका जो एफर्ट्स है वो बिल्कुल भी थमता नहीं है, रुकता नहीं है, स्लो नहीं होता है। एंड दो ही ट्विस्ट एंड ट्वर्ल एंड ट्रैक, जबकि वो बहुत ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट भी क्या है, ट्विस्ट का मतलब होता है मरोड़ना, घूमना। ट्विस्ट करते हैं, ट्वर्ल करते हैं, स्पाइरल जैसे घूमता है ना, उस तरह से कभी गोल घूम रहे हैं, कभी ऐसे घूम रहे हैं, वैसे घूम रहे हैं। तो ट्विस्ट, ट्वर्ल, ट्रैक, ये तीनों शब्द क्या है, किसी चीज़ के घूमने का प्रतीक है। ठीक है। अल्लास, अल्लास मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ही दुख से, बहुत ही परेशान होकर के बोलते हैं तो हम लोग शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं, अल्लास। अल्लास स्टिल फेथफुल टू हिज बैक, उसकी चोटी क्या है अभी भी, स्टिल फेथफुल टू हिज बैक, मतलब उसके जो पीछे का पोर्शन है, बॉडी के पीछे का पोर्शन, सर जो है उसका, वहीं पे ही टिका रहता है। वो ज़रा भी अपने फेथफुलनेस से हिलता नहीं है, मतलब उसी के अपने व्यवस्थित रूप में ही रहता है। स्टिल फेथफुल टू हिज बैक द पिगटेल हैंग्स बिहाइंड हिम, अभी भी पिगटेल कहाँ है, उसके पीछे ही है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट पैराग्राफ था। अब आप लोग समझ रहे होंगे कि ये सेज को जो कहा गया है, सेज मतलब बुद्धिमान व्यक्ति को जो कहा गया है कि वो बहुत बुद्धिमान, बहुत लर्नेड थे, बहुत समझदार थे। आप देख सकते हैं कि वो कितने लर्नेड और कितने समझदार थे, क्योंकि आखिर में इतने मेहनत करने के बाद भी क्या हुआ, उनकी चोटी पीछे से आगे नहीं आई। और आप उनके कन्फ्यूजन, उनकी परेशानी उनके इस पिक्चर में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू you all, and I hope you understood this. Please try to read this again and again so that you can understand it in a better way, and I will make you write the answers of the questions given below. But first, you just keep all this in your mind, and goodbye for today. Take care.